Good morning. Uh, we have discussed regarding the okay, diabetic insipidus. Diabetic insipidus. So we have discussed regarding the diabetic insipidus. Okay. So what is diabetic insipidus? Diabetic insipidus is it is excessive urine loss, means there is a lack of ADH hormones. So due to the lack of ADH hormones, the excessive body is unable to conserve urine. Okay, that is a diabetic insipidus. Okay, so diabetic insipidus, there are variety of diabetic insipidus. Central diabetic insipidus means neurogenic diabetic insipidus, as well as nephrogenic diabetic insipidus and idiopathic diabetic insipidus, as well as gestational diabetic insipidus. Okay, gestational means during pregnancy only the diabetic insipidus occurs, because in diabetic insipidus means the body is unable to retain water, means lack of water and salt in the body. So whatever the consumption of water, this is lost through the urine. Okay, urine through सब loss होते रहते हैं. So in pregnancy, the placental hormones are destroy the ADH hormones. ADH hormones are very essential to absorb water and salt. Okay, so various etiological factors are also seen in last class. So for example, certain drugs like lithium, okay, phenytoin, okay, and these drugs also causes the destruction of the antidiuretic hormone. Okay, antidiuretic hormone का कंटिन्यूस ये ड्रग्स यूज करने से भी क्या होता है, एंटीडायरेटिक हार्मोन डिस्ट्रक्शन होने का भी चांसेस है. सो इसलिए ये ड्रग्स से भी डायरेक्टिक इंसिपिडस होने का चांसेस है. ओके, सो देन पैथोफिजियोलॉजी एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, ड्यू टू द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ओके, द लैक ऑफ रिलीजिंग ऑफ द एंटीडायरेटिक हार्मोन, सो दैट मे लीड टू द बॉडी इज अनएबल टू absorb water and salt in the distal conjunctive tube, means the loss of water to the urine. Okay, that may causes the hypovolemia in the body. That hypovolemia causes hypotension. Due to hypotension, the hypoperfusion of the body cells, then the hypoperfusion that also may lead to the shock. Sometimes severe diabetic insipidus हो गए तो पर्सन शॉक भी हो सकता है, पर्सन शॉक में भी जा सकता है. ओके, ये एटियोलॉजिकल फैक्टर देखा था. सो टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द साइन ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक इंसिपिडस. Clinical symptoms of diabetic insipidus. Clinical symptoms. What are the clinical symptoms? तो क्या symptoms होते हैं? सबसे पहला main important symptoms is polyuria. यूरिन ज़्यादा excessive loss होते रहते हैं. ओके, क्योंकि यूरिन किडनी में absorption होता भी नहीं, नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी absorption होता नहीं, क्योंकि ADH हार्मोन नहीं है, पॉलीयूरिया होता है. तो यूरिन ज़्यादा पास हो रहा है, मतलब बॉडी के अंदर प्यास ज़्यादा लगता है. ओके, सो यूरिन रिटेन नहीं होता है, बॉडी को प्यास लगता है. पॉलीडिप्सिया, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीडिप्सिया. ओके, पॉलीयूरिया होता है, पॉलीडिप्सिया होता है. पॉलीडिप्सिया मींस एक्सेसिव थर्स्ट. ओके, एक्सेसिव थर्स्ट होता है. ओके, नेक्स्ट, सो यूरिन थ्रू वाटर ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए क्या होता है कि डिहाइड्रेशन होता है बॉडी के अंदर. डिहाइड्रेशन. ओके, डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं? डिहाइड्रेशन से वीकनेस होता है. डिहाइड्रेशन दैट कॉजेस वीकनेस. ओके, डिहाइड्रेशन से वीकनेस होता है. ओके, नेक्स्ट, दिस डिहाइड्रेशन एंड वीकनेस इफ द सीवियर दैट कॉजेस द हाइपोटेंशन. ओके, हाइपोटेंशन होता है. इससे पहले हाइपोवोलेमिया होता है बॉडी के अंदर. हाइपोवोलेमिया. सो हाइपोवोलेमिया दैट कॉजेस हाइपोटेंशन. Okay, due to the severe hypertension, sometimes shock में भी हो सकता है, पर्सन कोमा में भी हो सकता है. शॉक, कोमा, एज डेथ भी हो सकता है. ओके, डेथ भी हो सकता है अगर जल्दी ट्रीटेबल नहीं किया तो. ओके, सो अलॉन्ग विद दिस फटीग होता है. पर्सन इज वीकनेस, सो दैट्स व्हाई फटीग इज commonly seen in the diabetic insipidus. ओके, डिजीनेस होता है, नोजिया होता है, डिजीनेस होता है. ओके, डिजीनेस होता है, चक्कर आने चालू होता है. नोजिया हो सकता है. ओके, इरिटेबिलिटी होता है.
साल्ट में ये बॉडी के अंदर नोजिया कॉमनली होता है, इरिटेबिलिटी होता है, ओके। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन भी हो सकता है, कंफ्यूजन बिकॉज ऑफ द ब्रेन सेल्स आर hypoperfusion, hypoperfusion of the brain cells that causes confusion, okay. So as well as it also causes the weight loss, important sign है weight loss, the persons का weight loss होने चालू होता है। क्यों होता है? क्योंकि बॉडी के अंदर वाटर का 60% ऑफ वाटर रहता है बॉडी के अंदर वाटर रिटेन ही नहीं होता है। सो बॉडी के अंदर वाटर रिटेन नहीं होता, सो ऑटोमेटिकली वेट लॉस होने चालू होता है, ओके। वेट लॉस के साथ में ड्राई कूल स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन स्किन कैसे होता है? ड्राई होने चालू होता है, ड्राई एंड कूल, ड्राई एंड कूल, ड्राई स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन पूरा ड्राई होता है बॉडी के अंदर, जो माउथ में, नोज में, एंड स्किन भी ड्राई नेचर होता है। देयर इज नो वाटर कंटेंट इन द बॉडी स्किन, सो दैट इज द ड्राई स्किन, ओके। So the most important is nocturia, nocturia भी होता है, nocturia means frequent urination during night, frequent urination during what? Night, रात का टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन आते रहते हैं, frequency of urine is also increases, डे टाइम में लीकेज होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नाइट टाइम में कंटिन्यूसली यूरिन पास करने के लिए उठते रहते हैं पेशेंट, ओके। इस तरीके से सिम्टम्स डायबिटिक इंसिपिडस में देखने मिलते हैं। डायबिटिक इंसिपिडस क्लासिकल साइंस आर पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, डिहाइड्रेशन, ओके, ड्राई स्किन, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, नॉक्चूरिया, वेट लॉस, these are the classical sign of the diabetic insipidus, okay। अलग भी वीकनेस होता है, हाइपोवोलेमिया होता है, हाइपोटेंशन होता है, शॉक और कोमा में भी जा सकते हैं, फटीग, डिजीनेस, इरिटेबिलिटी, नोजिया, ये सबसे कॉमनली ये सिम्टम्स दिखने चालू होते हैं, ओके। सो these are the sign of diabetic insipidus, diabetic insipidus का क्लिनिकल सिम्टम्स है, ओके। सो नेक्स्ट हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखा है। अभी हमने डायबिटिक इंसिपिडस डेफिनेशन देखा, कॉजेस देखा, पैथोफिजियोलॉजी देखा, साइन एंड सिम्टम्स देखा। सो नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द डायबिटिक इंसिपिडस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक इंसिपिडस किस तरीके से डायग्नोस करते हैं? तो डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन द हिस्ट्री कलेक्शन, ओके, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ओके, हिस्ट्री रिगार्डिंग दी पेशेंट्स, ओके, पेशेंट्स कंप्लेंट्स की हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, वेट, हाइट, ओके, ये सब करना है, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना है, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ओके। स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन इज, ओके, यूरिन एग्जामिनेशन, ओके, यूरिन में कलर, ओके, क्वांटिटी, कितना यूरिन पास है, 24 आवर्स यूरिन ऑब्जर्वेशन भी करना जरूरी होता है आफ्टर एडमिशन। तो सबसे पहले कलर, फ्रीक्वेंसी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरिन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है इसमें, क्योंकि इसमें सोडियम नहीं है, सो यूरिनरी लॉस ज़्यादा हो रहा है बॉडी का अंदर, बॉडी थ्रू जो यूरिन जो आ रहा है उसमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, सीधा जैसा पानी पीता है वैसे बाहर ही आ रहा है, ओके। सो कॉन्सेंट्रेशन, लेस कॉन्सेंट्रेशन होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखना होता है, यूरिन टेस्ट देखना होता है, यूरिन कलर देखना होता है, ओके। सो अमाउंट भी देखना होता है, तो यूरिन अमाउंट। सो इस तरीके से यूरिन एग्जामिनेशन दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डायबिटिक इंसिपिडस, ओके। द स्पेसिफिक diagnostic evaluation is water deprivation test. This is a very important test, water deprivation test, water deprivation test, okay. This test is conducted only in diabetic insipidus में ये वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट करते हैं, ओके। सो वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट मतलब क्या होता है? दो तरह से वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट करते हैं। वन इज शॉर्ट टर्म फ्लूइड डिप्राइवेशन टेस्ट, उसको शॉर्ट टर्म फ्लूइड डिप्राइवेशन टेस्ट एंड फॉर्मल फ्लूइड डिप्राइवेशन टेस्ट,
Two types of diffraction test, short term fluid diffraction test, formal fluid diffraction test. Okay, fluid diffraction test में क्या करते हैं? So fluid diffraction test that helps to identify the changes the body weight. Okay, फ्लूइड का मतलब फ्लूइड डिफ्राक्शन टेस्ट मतलब यूरिन चेक करते हैं फ्रीक्वेंटली, इसमें बॉडी वेट क्या चेंजेस हो रहा है. ओके, बॉडी ब्लड सोडियम, बॉडी वेट एंड यूरिन कंसंट्रेशन, ये तीनों देखता है. ओके, फ्लूइड डिफ्राक्शन टेस्ट में शॉर्ट टर्म फ्लूइड डिफ्राक्शन टेस्ट, फॉर्मल फ्लूइड डिफ्राक्शन टेस्ट करते हैं. शॉर्ट टर्म फ्लूइड डिफ्राक्शन में पेशेंट को डॉक्टर बोलते हैं थोड़ा टाइम तक कुछ पीना नहीं है, तब यूरिन निकाल के वो चेक करता है. तो शॉर्ट टर्म फ्लूइड डिफ्राक्शन टेस्ट करते हैं. फॉर्मल फ्लूइड डिफ्राक्शन टेस्ट, इट इज दिस टेस्ट इज कंडक्टेड इन दी आफ्टर द पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन. ओके, आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन एवरी आवरली यूरिन इज कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट. पेशेंट से एवरी आवरली यूरिन कलेक्ट करना है, देन सेंड टू द लैबोरेटरी फॉर ओके यूरिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यूरिन कलर, ओके यूरिन अमाउंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब देखने के लिए ये क्या करते हैं, फॉर्मल फ्लूइड डिफ्राक्शन टेस्ट करते हैं. दो तरीके से वाटर डिफ्राक्शन टेस्ट करते हैं. वाटर डिफ्राक्शन टेस्ट इट इज हेल्पफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट वेट, यूरिन कंसंट्रेशन, पेशेंट वेट, यूरिन कंसंट्रेशन एंड ब्लड सोडियम भी डिटेक्ट कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज वाटर डिफ्राक्शन टेस्ट. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. ओके, सो इसके थ्रू सेकेंडरी प्रॉब्लम हो गया, एक्सरे एमआरआई भी कर सकते हैं. अगर फॉर एग्जांपल अगर एनी मास और एनी एंगोर्जमेंट इन द एब्डोमेन, तो एक्सरे टेस्ट एंड एक्सरे एंड अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवा सकते हैं. तो इस तरीके से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इलेक्ट्रोलाइट. ओके, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम पोटेशियम भी चेक करना है ब्लड का अंदर, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स. द मोस्ट इज वाटर डिफ्राक्शन टेस्ट. So water diffraction test, two types of water diffraction test, short term water diffraction test and formal water diffraction test. Okay, दो तरीके से टेस्ट आते हैं. Okay, this is the diagnostic evaluation of the diabetic insipidus. Then management of diabetic management. Okay, so हम मैनेजमेंट का मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है इधर देखिए. डायबिटिक इंसिपिडस में पेशेंट का अंदर फ्लूइड रिटेन नहीं हो रहा है, एक्सेसिव फ्लूइड ज़्यादा निकल रहा है यूरिन थ्रू. सो इसलिए फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है डायबिटिक इंसिपिडस में. सो डायबिटिक इंसिपिडस में सबसे पहला फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना है, फ्लूइड रैपिड फ्लूइड देना है. सेकंड वन इज एंटी डायबिटिक हार्मोन एडमिनिस्टर करना है. एंटी डायबिटिक हार्मोन रिटेन होने जैसे एंटी डायबिटिक हार्मोन का संख्या बढ़ाना है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो द गोल ऑफ डायबिटिक इंसिपिडस इज मेंटेन द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. ओके, द मेंटेन द goal of diabetic insipidus is maintain fluid and electrolyte balance. To maintain the fluid and electrolyte balance in the body, this is a very important. Okay, so other than this, so hormonal replacement therapy, okay, administer एंटी-डायरेटिक हार्मोन. ओके, एडीएच हार्मोन को एडमिनिस्टर करना है. ओके, फॉर एग्जांपल एंटी-डायरेटिक हार्मोन कैसे देता है? सो फॉर डेस्मोप्रेसिन. ओके, डेस्मोप्रेसिन हम कॉमनली यूज करता है. डेस्मोप्रेसिन, दिस इज अ टाइप ऑफ स्प्रे. ओके, दिस इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू नेसल इनहेलेशन. नेसल इनहेलेशन से देता है, नेसल इनहेलेशन. ओके, नेसल इनहेलेशन जैसा होता है, जैसे एनेस्थेटिक जैसा ड्रग्स आता है वो नोज से इनहेल करना है. सो डेस्मोप्रेसिन देखा होगा सभी लोग. डेस्मोप्रेसिन दिस इज अ टाइप ऑफ स्प्रे ड्रग्स दैट हेल्प्स टू इंक्रीज द एडीएच हार्मोन्स इन द बॉडी. मींस वैसोप्रेसिन लेवल को बढ़ाते हैं, एंटी डायबिटिक हार्मोन लेवल बढ़ाते हैं. ओके, डेस्मोप्रेसिन, लेफ्रेसिन, इस तरीके से ड्रग है डेस्मोप्रेसिन, लेफ्रेसिन. ओके, नेक्स्ट पिट्रेसिन टेनेट. इसको लेफ्रेसिन मतलब ये पिट्रेसिन टेनेट करके आता है ये ड्रग, पिट्रेसिन टेनेट. ओके, दिस इज गिवन बाय आईवी 1 to 3 डोज, 1 से 3 डोज आईएम से देना होता है. सो ये हार्मोनल रिप्लेसमेंट होता है. एंटी डायबिटिक हार्मोन को हमने एडमिनिस्टर कर सकते हैं इसके थ्रू. ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेंटेन
water and electrolyte balance, maintain water and electrolyte balance, maintain water and electrolyte balance. Okay. So water and electrolyte balance, how we can maintain? We can maintain the water and electrolyte balance through the administration of IV fluids, and if the sodium level is very low, then administer the sodium chloride injection. Okay, sodium chloride injection IV थ्रू धीरे से एडमिनिस्टर करना है. एंटी डायरेटिक थेरेपी भी देना है, डेस्मोप्रेसिन, लेप्रेसिन, पिट्रेसिन, टेनेट. ओके, डेस्मोप्रेसिन इट इज थ्रू द नेसल इनहेलेशन. ओके, सो इसी तरीके से मैनेजमेंट करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है. सो एज वेल एज along with this, maintain strict intake output, maintain strict intake output chart. strict intake output chart maintain करना बहुत जरूरी है. पेशेंट कितना पी रहा है, कितना बाहर निकल रहा है. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कलेक्ट 24 hours urine, collect 24 hours urine. ओके, 24 hours urine collect करना है. in case of diabetic insipidus, in beginningly the patient losses water about 50 लीटर पर डे, और डे में 15 लीटर जैसा पानी निकलते रहते हैं नॉर्मली. ठीक है, 2 to 3 लीटर्स यूरिन निकलते हैं एवरी डे. पर डायबिटिक इंसिपिडस पेशेंट्स को 15 से ज़्यादा 15 to 19 लीटर यूरिन इज पास्ड, और 15 to 19 लीटर ऑफ वाटर इज लॉसेस थ्रू द किडनी. सो this much amount of water is losses through the body, so that causes the hypovolemic hypertension. Okay, so 24 hours यूरिन कलेक्ट करना है. पेशेंट का मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन देखना है. ओके, ऑब्जर्व द मेंटल स्टेटस ऑफ द पेशेंट. मेंटल स्टेटस, अगर फ्लूइड लेवल कम हो रहा है, सोडियम का लेवल बॉडी के अंदर कम हो रहा है, मतलब पेशेंट कंफ्यूजन में जाता है. ओके, पेशेंट का मेमोरी भी लॉस होने के चांसेस होता है, पेशेंट का सेमी कॉन्शियस में जाने के चांसेस होता है. इसलिए मेंटल स्टेटस, ओके, पेशेंट का बार बार मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस ऑफ वाइटल साइंस. वाइटल साइंस भी स्ट्रिक्ट मेंटेन करना है. बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन होता है पेशेंट के अंदर. तो हाइपरटेंशन, अगर बीपी अच्छा आ गया, बढ़ गया, बीपी बढ़ रहा है, मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर आ रहा है, फ्लूइड थेरेपी सक्सेसफुल. ओके, एंड पल्स रेट इज नॉर्मल, पेशेंट मेंटली स्टेबलाइज्ड, and his respiration is also normal, so that indicates the optimal fluid therapy is administered to the patient. पेशेंट को optimal fluid therapy दिया है ऐसा इंडिकेशन करता है. ओके, सो आउटपुट भी देखते रहने का. आउटपुट एंड आउटपुट के हिसाब से इनटेक भी एडमिनिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, दिस इज व्हाट रिगार्डिंग द डायबिटिक इंसिपिडस. ओके, डायबिटिक इंसिपिडस इज a condition in which the lack of ADH hormone resulting in body is unable to conserve water. Okay, central diabetic insipidus or neurogenic diabetic insipidus, idiopathic diabetic insipidus. Okay, next nephrogenic diabetic insipidus and gestational diabetic insipidus, as well as the certain drugs like lithium, phenotide. These drugs also causes the destruction of the antidiuretic hormone in the body. In the diagnostic, polyuria, clinical symptoms: polyuria, polydipsia, dehydration, drying mucous membrane. Okay, hypovolemia, hypotension, weight loss, irritability, confusion, nausea. ओके, इस तरीके से सिम्टम्स दिखने चालू होता है डायबिटिक इंसिपिडस में. ओके, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूरिन एग्जामिनेशन. ओके, थोरो यूरिन एग्जामिनेशन, कलर, ओके, क्वांटिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कंसंट्रेशन इन यूरिन एग्जामिनेशन. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट is water deprivation test. In water deprivation test, okay, that test helps to, okay, weight changes in the patient, okay, body weight changes in the patient, and blood serum concentration and urine concentration. Urine concentration is very less in the diabetic insipidus because of the high quality urine is lost. Okay, then noxuria is also very important sign in the diabetic insipidus. Okay, diagnostic evaluation of management में most important management is fluid therapy is very important. So antidiuretic hormone administration, desmopressin, lepresin. Okay, desmopressin, lepresin, pitracin 10-8. This drug is given to IM. Okay, this desmopressin it is administered through nasal inhalation. Okay, so along with the complete or carefully observation of the patient mental status. If the electrolyte balance are very low, the mental patient's mentality will be going down, either confusion, okay, disorientation, either stop, okay, and increase pulse rate. Whatever the
whatever, but we should observe the mental status of the patient. Strict intake output is very essential in the management of the diabetic insipidus, and strict intake के साथ में क्या करना है, 24 hours यूरिन भी कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, this is regarding the diabetic insipidus. In next class we will discuss regarding the diabetic mellitus. Thank you very much.